عبدالغنی لون اس وقت میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں نے اس تہخانے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا، میری معلومات کے مطابق 60 سال پہلے یہاں پہلی قبر بنی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پرانے قبرستان گلمرگ شہر کے دوسری طرف ہیں، وہاں جگہ نہ بچی تو یہاں قبرستان بنا لیا گیا۔ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس قبرستان کی آبادی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ آزادی کی تحریک جیسے جیسے زور پکڑتی گئی، یہ قبرستان بھی پھیلتا چلا گیا۔ تقریباً 30 سال پہلے وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تقریباً 30 سال پہلے یہاں ایک قبر کھودی جا رہی تھی تو زمین کے نیچے سے مٹی بیٹھتی چلی گئی اور قبرستان کے نیچے یہ وسیع العریض غار کا انکشاف ہوا۔ اس غار کو راز میں رکھا گیا اور یہاں ایک حجرہ تعمیر کر کے ایک ضعیف العمر آدمی کو بٹھا دیا گیا۔ وہ بڑا اللہ لوگ تھا، کچھ لوگ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے، اس طرح وہ پیر بابا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ 10 سال پہلے پیر بابا کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر بھی ایک حجرہ تعمیر کر دیا گیا۔ اس دوران یہ پختہ قبر بھی تعمیر کر لی گئی۔ تہخانے کا راستہ چھپانے کا یہی ایک بہترین طریقہ تھا۔ یوں تو بھارتی وحشی فوجی جنازوں پر بھی فائرنگ کرتے ہیں اور کوئی شبہ ہونے پر قبریں تک کھود ڈالتے ہیں، لیکن اس مزار پر انہیں آج تک کوئی شبہ نہیں ہو سکا۔ یہ تہخانہ مجاہدین کے لیے پچھلے 10-15 سال سے ایک چھوٹے سے اسلحہ ڈپو کا کام دے رہا ہے۔ یہاں جمع ہونے والے اسلحے کو روکا نہیں جاتا، وقتاً فوقتاً مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت کے وقت مجاہدین یہاں پناہ بھی لے لیتے ہیں۔ گلمرگ اور اس کے قریب و جوار میں چھاپہ مار کارروائیوں میں ہمارا پلہ اس لیے بھی بھاری رہتا ہے کہ یہاں سے ہمیں ضروری اسلحہ مل جاتا ہے، اور بھارتی فوج آج تک یہ سراغ نہیں لگا سکے کہ ان کے ناک کے عین نیچے بہت بڑی چھاونی سے محض 1.5-2 میل کے فاصلے پر ہمارا یہ اڈا موجود ہے۔ وہ چند لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن جب شہر کے جنوب میں بھارتی فوجیوں کا وہ کیمپ اور گولہ بارود کا ڈپو بننا شروع ہوا تو اس علاقے میں ہماری سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئی ہیں، اور آج اس ڈپو کے خلاف کارروائی کا پروگرام ہے۔ یہ تو مجھے پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ اس بھارتی فوجی کیمپ کے خلاف کارروائی میں جو مجاہدین شریک ہوں گے ان میں میرا نام بھی شامل ہے، اور اس لیے مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ دوسرے مجاہدین کو بھی اس خفیہ طور پر یہاں جمع کیا جا رہا تھا، لیکن اپنے آپ کو ایک بڑی کارروائی کہ اس قدر قریب دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی کی لہر سی دوڑ رہی تھی۔ اس دوران 4 آدمی اور آ چکے تھے، اور پھر کمانڈر محب اللہ نے مجھے اشارے سے اپنے قریب بلا کر ایک نوجوان مجاہد کے حوالے کر دیا۔ آج کی کارروائی کے دوران تم لائٹ مشین گن سنبھالو گے، اکبر کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں LMG چلانا سکھا دے گا، زیادہ مشکل نہیں ہے، تم چند منٹ میں سیکھ لو گے۔ میں نے حسبات میں سر ہلا دیا۔ آٹومیٹک رائفل اور سب مشین گن کے استعمال میں تو مجھے خاصی مہارت ہو چکی تھی، اور اب لائٹ مشین گن میرے بدن میں برقی لہریں سی گونجنے لگی۔ اکبر نے ایک لائٹ مشین گن اٹھا کر ایک طرف رکھ دی، اس کے آگے نال کے ساتھ نیچے کی طرف ایک سٹینڈ لگا ہوا تھا جس سے گن کی نال کچھ اوپر اٹھ گئی تھی، لیکن اپنی مرضی کے مطابق اسے حرکت دی جا سکتی تھی۔ یہ گن زیادہ وزنی نہیں ہے، اکبر بتا رہا تھا، اسے کندھے پر رکھ کر بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، اور اس کا استعمال بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر مجھے گن کے پیچھے پوزیشن میں بٹھا دیا اور اس کے استعمال کے بارے میں بتانے لگا کہ کس طرح بیلٹ لوڈ کیا جاتا ہے، لاک، ٹریگر اور گرپ کہاں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے اسلحے کی ٹریننگ کے لیے اگرچہ خاصا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن مجاہدین کے پاس تو نہ کوئی ٹریننگ کیمپ تھا اور نہ ہی اتنا وقت۔ وہ ہر قسم کے اسلحے کا استعمال چند منٹوں میں سیکھ لیتے تھے، اور دشمن کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں ہی ان کی اصلی ٹریننگ تھی۔ میں نے آدھے گھنٹے میں LMG کا استعمال سیکھ لیا اور بیلٹ چڑھا کر بھی دکھایا، اور دوسرے فنکشن کے استعمال کا بھی مظاہرہ کیا۔ گڈ، اکبر مسکرا دیا، تم واقعی ذہین آدمی ہو۔ اس کا بیلٹ عام طور پر پیٹی میں ہوتا ہے، اور گنز کے ساتھ اس کا ایک ہیلپر بھی ہوتا ہے جو بیلٹ کے فنکشن کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہمارے پاس زیادہ آدمی نہیں ہوں گے، گولیوں والا بیلٹ بھی تمہیں یہ اٹھانا پڑے گا۔ اس طرح اس نے پٹی میں سے گولیوں سے بھرا ہوا بیلٹ نکال کر اپنے جسم پر لپیٹ لیا، اور پھر میں نے بھی اسے بیلٹ اپنے جسم پر لپیٹ کر دکھایا۔ 1000 گولیوں کا بیلٹ تھا، وہ خاصا وزنی تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ میں بیلٹ اور LMG اٹھا کر پہاڑیوں میں کئی میل تک بے تکان چل سکتا ہوں۔ اکبر میری کارکردگی سے مطمئن ہو گیا اور پھر مجھے کچھ دوسری باریکیاں سمجھانے لگا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے میں وقتاً فوقتاً ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ بعض دوسرے آدمیوں کو بھی LMG اور راکٹ چلانے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ ایک بڑی کارروائی سے پہلے یہ مختصر سے لمحات تھے جب ان مجاہدین کو وہ اسلحہ چلانے کی تربیت دی جا رہی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا تھا، اور یہاں پر موجود
موجود کمانڈرز ان کی اس تربیت سے مطمئن تھے۔ اس دوران تہہ خانے کے ایک کونے میں جا کر ایک آدمی نے چائے بنائی۔ یہاں اس سے پہلے شاید اس سے بھی زیادہ تعداد میں مجاہد آتے رہتے تھے، اس لیے مگوں اور پیالوں کی کمی نہیں تھی۔ چائے تقسیم کرنے کے ساتھ اس نے زمین پر چادر بچھا کر ایک بڑی سی پوٹلی کھول دی جس میں نمک ملے آٹے کی روٹیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے حصے کی روٹی لے کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی ایک روٹی لے لی اور نوالے توڑ توڑ کر کیفے کے ساتھ کھانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کمانڈر محب اللہ، کمانڈر رشید اور عبد الغنی لون اکٹھے بیٹھ گئے۔ ہم لوگ بھی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ کمانڈر محب اللہ زمین پر بھارتی فوجی کیمپ کی لوکیشن کا نقشہ بنا کر حملے کے پروگرام کو فائنل ٹچ دینے لگا۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ اس کارروائی میں کمانڈو سمیت 24 مجاہدین حصہ لینے والے ہیں۔ 18 تو اس تہہ خانے میں موجود تھے، جبکہ باقی 6 کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بھارتی فوجی کیمپ کے آس پاس مختلف جگہوں پر پہنچ چکے ہیں، جو ہمارا سگنل سن کر اس سے آگے ہماری رہنمائی کریں گے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق کیمپ پر حملہ 3 مختلف اطراف سے کیا جانا تھا۔ اس طرح مجاہدین بھی 3 پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے۔ ہر پارٹی میں 8 مجاہدین ہوتے۔ ایک پارٹی کمانڈر محب اللہ کی تھی، دوسری پارٹی کی کمان کمانڈر رشید کو سونپی گئی، جبکہ تیسری پارٹی کی قیادت عبد الغنی لون کے سپرد کر دی گئی۔ ہر پارٹی کو کارروائی مکمل کرنے کے بعد مختلف سمتوں میں فرار ہو جانا تھا۔ میں کمانڈر محب اللہ کی پارٹی میں تھا اور ہمیں انتہائی جنوب کی طرف سے کیمپ پر حملہ آور ہونا تھا۔ یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ ہر پارٹی کسی سگنل کے انتظار کیے بغیر ٹھیک 4 بجے اپنی کارروائی شروع کر دے۔ وہ فوجی کیمپ اسی قبرستان سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستہ پہاڑی اور خاصا دشوار گزار تھا، جسے طے کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا تھا۔ کمانڈر محب اللہ کا حکم سنتے ہی ہم تیار ہو گئے۔ میں نے لائٹ مشین گن کی گولیوں والی بیلٹ اس طرح اپنے سینے اور باقی جسم سے لپیٹ لی کہ ضرورت کے وقت جسم سے الگ کر کے استعمال کی جا سکے۔ LMG میں نے اپنے دائیں کندھے پر ڈال لی۔ کمر پر بندھے ہوئے پٹکے میں نے ایک پستول اور اس کے چند میگزین بھی اڑس لیے۔ ہر پارٹی میں ایک راکٹ لانچر بردار بھی شامل تھا۔ اس طرح 4 راکٹ بھی ان تینوں کے حصے میں آئے تھے۔ انہوں نے راکٹ چادروں میں لپیٹ کر پشت پر لاد رکھے تھے۔ ہر پارٹی میں 2 لائٹ مشین گنیں تھی۔ پستول یا ریوالور تو ہر ایک کے پاس موجود تھا۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس سب مشین گن تھی اور کسی کے پاس آٹومیٹک رائفل۔ بعض لوگوں کے بیلٹوں میں ہینڈ گرینیڈز بھی اڑسے ہوئے تھے۔ ہم لوگ ٹھیک 1 بجے حجرے میں واقع قبر کے راستے اس تہہ خانے سے رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے کمانڈر رشید کی پارٹی وہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد عبد الغنی لون 15 منٹ کے وقفے سے اپنی پارٹی لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے مزید 15 منٹ بعد کمانڈر محب اللہ کی رہنمائی میں ہم بھی ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ حجرے میں ایک بوڑھا درویش بیٹھا ہوا تھا۔ آخری آدمی کے باہر آتے ہی اس نے قبر کو دوبارہ ٹھیک کر دیا اور ہمارے ساتھ ہی اجرے سے باہر آ گیا۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا اور تاریکی تھی۔ یہ چاند کی پہلی جمعرات تھی اور غالباً 4 تاریخ تھی، لیکن چوتھی کا چاند بہت پہلے آسمان سے رخصت ہو چکا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں آدھی رات کے وقت قبرستان میں آنے کی ہمت بھی نہ کر پاتا، لیکن اب صورتحال دوسری تھی۔ اس تاریکی اور سناٹے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ہم قبرستان کی پچھلی طرف سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ مڑ کر بائیں طرف دیکھا تو تقریباً 2.5 میل دور نشیب میں گلمرگ شہر نیند کی آغوش میں تھا۔ شہر میں کہیں کہیں بتیاں جھلملاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شہر سے پرے قدرے بائیں جانب بھارتی فوجیوں کی چھاونی تھی۔ ہم مسلسل جنوب کی طرف ہٹتے ہوئے پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ کمانڈر محب اللہ سب سے آگے تھا، میں اس کے پیچھے چوتھے نمبر پر تھا۔ انہی پہاڑیوں میں چلتے ہوئے ہمیں تقریباً 5 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ ہم مناسب رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ LMG بھی خاصی وزنی تھی، میں اسے کبھی ایک کندھے پر منتقل کرتا تو کبھی دوسرے پر۔ شروع میں تو یہ مجھے کچھ وزنی لگی، لیکن بعد میں اس کا عادی ہو گیا۔ تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک کشادہ ندی میں اتر گئے۔ ندی اگرچہ گہری تھی، لیکن جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ہم ان پتھروں پر اچھلتے ہوئے ندی کے پار آ گئے۔ کچھ دیر تک ہم ندی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، پھر پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ اس مرتبہ ہم مسلسل بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ راستہ بڑا کٹھن تھا اور ایک ٹکڑا تو بہت خطرناک تھا، جو ایک عمودی چٹان کے ساتھ واقع تھا، جس کی دوسری طرف 250-300 فٹ گہرا کھڈ تھا۔ ذرا سی لغزش موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے بائیں کندھے پر لدی ہوئی LMG کو سنبھال رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ چٹان پر جمائے محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تیز ہوا مجھے بار بار پیچھے دھکیل رہی تھی۔ میں چٹان کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور بالآخر 7 منٹ بعد میں پولیسرات کی طرح وہ خطرناک راستہ طے کر کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ ہم رکے بغیر مسلسل چل رہے تھے۔ میرے جسم پر لپٹا ہوا گولیوں کا بیلٹ بھی خاصا وزنی تھا
और कंधे पर लदी हुई LMG भी भारी थी। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए मेरा सांस फूलने लगा और मेरा ख्याल है तकरीबन 2.5 घंटों तक मुसलसल चलते रहने के बाद हम एक जगह रुके थे। यहाँ चनार के चंद ऊंचे दरख्त थे। तेज हवा से उनकी शाखें झुकी जा रही थी और पत्तों के आपस में टकराने से पैदा होने वाली आवाजों से यूं लगता था कि जैसे सैकड़ों परिंदे बैक वक्त फड़फड़ा रहे हों। हमारे तमाम साथी पत्थरों पर बैठ गए। मैं भी LMG कंधे से उतार कर एक पत्थर पर बैठ गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। कमांडर मुहिबुल्लाह हमसे चंद गज आगे चल रहा था। वो कुछ देर तक तारीकी में घूरता रहा, फिर एकदम भेड़िए की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा, लेकिन फौरन ही संभल गया। आवाज सुनकर मैं समझा कि कोई भेड़िया अचानक ही यहाँ इस तरफ निकल आया है, लेकिन फिर अपनी इस हमाकत पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। वो कमांडर मुहिबुल्लाह था जो मुंह से भेड़िए की आवाज निकालकर किसी को मखसूस सिग्नल दे रहा था। कमांडर मुहिबुल्लाह के खामोश होने पर भेड़िए की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। ये आवाज कुछ दूर से आती हुई महसूस हुई थी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने जवाब दिया, दूसरी तरफ से भी जवाब मिला और फिर खामोशी छा गई। मगर यह खामोशी ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। 2 मिनट बाद ही छोटे छोटे पत्थरों के टकराने की आवाज सुनाई देने लगी। साफ लग रहा था कि कोई आदमी मोहतात अंदाज में चल रहा है और फिर चंद सेकंड बाद ही वो शख्स सामने आ गया। वो मकबूल था। अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि मकबूल और हसन खान बाबा की दरगाह पर आने के बाद कहाँ गायब हो गए थे। इन्हें गालिबन हर अव्वल दस्ते के तौर पर आगे भेज दिया गया था और इस मुकर्ररा जगह पर सिग्नल पाकर मकबूल सामने आ गया था, जबकि मेरा ख्याल में हसन भी करीब जवार में कहीं मौजूद होगा। मकबूल ने सियाल लंबा चौका किस्म का कुर्ता पहन रखा था, सर पर टोपी भी काली थी, उसके हाथ में सब मशीन गन थी और कमर पर बंधे हुए पटके में कई फाजिल मैगजीन अड़से हुए थे। क्या सूरत हाल है? कमांडर मुहिबुल्लाह ने पूछा। उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। सब ठीक है, मकबूल ने जवाब दिया। हमारा वो रास्ता बिल्कुल महफूज और कैंप में भी कोई गैर मामूली सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही। निगरान चौकियों पर भारी मशीन गनें नस्ब हैं और हर चौकी पर 2 फौजी बैठे हुए हैं। निगरान चौकियों पर सर्च लाइट भी जल रही है, जिनसे खारदार बाढ़ के साथ साथ अंदर और बाहर चंद फुट तक का इलाका रोशन है। इस रोशनी की वजह से बाढ़ तक पहुंचना मुमकिन नहीं। नामुमकिन का लफ्ज हमारे लुगत में नहीं है। कमांडर मुहिबुल्लाह ने कहा, आगे बढ़ो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कमांडर का इशारा पाकर हम सब अपनी जगह से उठ गए और मकबूल के पीछे पीछे एक कतार में चलने लगे। दरख्तों के झुंड से निकलकर एक बड़ी चट्टान के दूसरी तरफ आते ही मैं चौंक गया। बाईं तरफ किसी कदर नशेब में रोशनियों की कतार नजर आ रही थी। ये रोशनियां कहीं ज्यादा बुलंदी पर थीं और कहीं किसी कदर नीची। ये सर्च लाइट इन टावर्स नुमा निगरान चौकियों पर नस्ब थी, जो बॉर्डर के साथ थोड़े थोड़े फासले पर बनी हुई थी। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद हम एक दरार में दाखिल हो गए। ये दरार इस कदर कुशादा थी कि इसमें 2 आदमी पहलू ब पहलू चल सकते थे। ये दरार दरअसल आबी गुजरगाह थी। बरसात के दिनों में पहाड़ों की बुलंदी से आने वाला पानी एक नाले की सूरत में यहाँ से गुजरता था। हम मुसलसल नशेब में उतरते रहे और फिर बुलंदी की तरफ जाने लगे और बिलाखिर एक जगह रुक गए। यहाँ दाएं बाएं भी खड़ थे, जिनमें आसानी से छुपा जा सकता था। कमांडर मुहिबुल्लाह ने बड़े मोहतात अंदाज में सर उठाकर ऊपर देखा, फिर नीचे झुककर निहायत मध्यम आवाज में हमें हिदायत देने लगा। सब अपना अपना असला तैयार करने लगे। इस कदर एहतियात से काम लिया जा रहा था कि मामूली सी आवाज भी पैदा नहीं हो रही थी। कोई मामूली सी आवाज भी हवा के दोष पर दुश्मन के कानों तक पहुंच सकती थी। मैंने LMG कंधे से उतार ली थी, लेकिन बेल्ट अभी नहीं उतारी थी, क्योंकि गन को इस जगह फिट नहीं करना था। मैंने बहुत मोहतात अंदाज में सर उठाकर ऊपर देखा और इसके साथ ही मेरे जिस्म में सनसनी की लहर सी दौड़ गई। हमसे करीबन 50 गज आगे ऊंची जगह पर वो खारदार बाड़ थी, जिसके साथ वॉच टावर बने हुए थे और उस बाड़ के दूसरी तरफ किसी कदर नशेब में कई फौजी बैरिक्स नजर आ रही थी। कई खैमे भी थे। एक तरफ लातादार ट्रक भी खड़े थे। इस वसी और अरीस इलाके में जगह जगह बत्तियां जल रही थी। इनकी रोशनी ही की वजह से वो सब कुछ देखना मुमकिन हो सका था। एक वॉच टावर हमारे बिल्कुल सामने था। उसकी बुलंदी तकरीबन 15 फुट थी। उसकी छत पर भी एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में टावर पर नस्ब भारी मशीन गन साफ नजर आ रही थी। 2 फौजी थे, जिनमें एक गन के सामने मुस्तैद बैठा था और दूसरा उसके करीब खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके कंधे पर भी सब मशीन गन लटक रही थी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने हम सब को समझा दिया कि किसको क्या करना है और फिर उसने मकबूल को इशारा किया। वो खड्डे में जमीन पर झुकता हुआ बाईं तरफ चलता चला गया। मेरे दिल की धड़कन खौफनाक हद तक तेज हो गई थी। मुझे वो वक्त याद आ गया जब हमने श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर किसी जगह भारतीय फौजी काफिले पर हमला किया था। वो सूरत कुछ और थी। हमने ट्रकों के चलते काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। भारतीय फौज को संभलने का मौका
नहीं मिल सका था। यहाँ सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। दुश्मन मुस्तैद बैठा था, थोड़े थोड़े फासले पर मशीन गनें तैयार थी। यहाँ जबरदस्त मुकाबले की तवक्को थी। कमांडर मुहिबुल्लाह मेरे साथ ही था और बारी बारी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रहा था। मेरे बिल्कुल सामने होने की वजह से उसकी घड़ी मुझे भी दिखाई दे रही थी। 4 बजने में 1 मिनट बाकी था और फिर ठीक 4 बजे खामोश फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। ये फायरिंग इस तरफ से हुई थी जिस तरफ मकबूल गया था। हसन पहले ही वहाँ मौजूद था। 4 बजे ही उन्होंने फायर खोल दिया था। इन दोनों की तरफ से पहला ब्रस्ट फायर होते ही वॉच टावर से भारी मशीन गन का फायर खोल दिया गया। गोलियों की बारिश उस तरफ हो रही थी जहां हमसे करीबन 30 गज के फासले पर मकबूल और हसन फायरिंग कर रहे थे। हम कमांडर मुहिबुल्लाह के हुक्म के इंतजार में बिल्कुल तैयार बैठे थे। तकरीबन उसी वक्त हमारे 200 गज दाएं और उतने ही फासले पर बाईं तरफ से भी जबरदस्त फायरिंग की आवाज गूंजने लगी थी। अब्दुल गनी लोन और कमांडर रशीद की पार्टियों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी। मशीन गन से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और फिर एकदम इस तरफ तारीकी छा गई। मकबूल या हसन की किसी गोली ने सर्च लाइट तोड़ दी थी। टावर केबन की छत पर बल्ब जल रहा था और वो 2 फौजी साफ नजर आ रहे थे। कमांडर मुहिबुल्लाह ने भी आड़ लेकर सब मशीन गन से फायर खोल दिया। टावर पर मशीन गन से फायर करने वाला अपनी जगह से उछलकर ढेर हो गया। मशीन गन खामोश हो गई। दूसरा फौजी अपनी सब मशीन गन छोड़कर हैवी मशीन गन की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो मशीन गन पर हाथ रखता, मकबूल या हसन की गोली ने उसे चाट लिया और वो उछलकर चीखता हुआ टावर से नीचे गिरा। मकबूल टावर पर पहुंचो, हरी अप, कमांडर मुहिबुल्लाह चीखा। फिर उसने हमें हुक्म दिया, बाढ़ के करीब पहुंचो और फायर खोल दो। इसके साथ ही वो खुद भी उचक कर गड़े से बाहर निकला। मैंने LMG ऊपर रख दी और उचक कर गड़े से बाहर निकल आया और गन उठाकर खारदार तारों वाली बाढ़ की तरफ दौड़ा। उस कैंप के बारे में हमारे कमांडोज के अंदाजे कुछ गलत निकले थे या उन्हें पूरी मालूमात हासिल नहीं हुई थी। मेरा अंदाजा भी यही था कि बाढ़ के साथ वाले वॉच टावर पर गनों के अलावा मजीद हिफाजती इंतजामात नहीं होंगे, लेकिन भारतीय फौजी इतने बेवकूफ तो हरगिज नहीं थे कि इतने बड़े असला डिपो को महज निगरान चौकियों के रहमो करम पर छोड़ दें। बाढ़ से तकरीबन 100 गज अंदर की तरफ कई जगहों पर मिट्टी की बोरियां रखकर मोर्चे बनाए हुए थे जिन पर भारी मशीन गनें नस्ब की गई थी। दिन के वक्त धूप से बचाने के लिए इन मोर्चों पर साइबान तने हुए थे जिनकी वजह से उनकी निशानदेही हो रही थी। पहाड़ियां हैवी लाइट और सब मशीन गनों की फायरिंग से गूंज रही थी। कमांडर रशीद और अब्दुल गनी लोन की पार्टियों ने भी भरपूर हमला किया था और वो भी बाढ़ की 2 निगरान चौकियों पर कब्जा कर चुके थे और उनके आदमियों ने हैवी मशीन गनों का रुख कैंप की तरफ मोड़ दिया था। मकबूल भी सामने वाले टावर पर पहुंच गया था। उसने सबसे पहले तो ऊपर लगे हुए बल्ब को उड़ा दिया और फिर गन का रुख मोड़कर कैंप पर आग बरसाने लगा। मैं बाढ़ से चंद फुट के फासले पर रुक गया। LMG को अपने सामने रखकर बड़ी फुर्ती से अपने जिस्म से लिपटा हुआ गोलियों वाला बेल्ट उतार कर जमीन पर फेंक दिया और बेल्ट का एक सिरा गन में फिट करने लगा। इस सारे अमल में मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा था, लेकिन मैं अभी गन के सामने पोजीशन नहीं ले पाया था कि कैंप के अंदर से गोलियों की बारिश होने लगी। सुर्ख दहकते हुए अंगारे मूसलाधार बारिश की तरह हमारी तरफ लपक रहे थे। कई गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। मैं बड़ी फुर्ती से जमीन पर लेट गया और गन संभाल ली और ट्रिगर खींच लिया। तड़तड़ाहट की खौफनाक आवाज से गन अंगारे उगलने लगी। दुश्मन की चलाई हुई गोलियां मेरे आसपास गिर रही थी जिसे एक बड़े पत्थर की आड़ हासिल थी। कई गोलियां उस पत्थर पर लग रही थी। अगर मेरे सामने वो पत्थर ना होता तो मैं छन्नी हो चुका होता। मुहाज पूरी तरह गर्म हो चुका था। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहर सी दौड़ रही थी। दुश्मन से इस तरह बाकायदा मुकाबले का ये मेरा पहला मौका था और हैरत की बात तो ये थी कि मैं अपने आप में सनसनी तो महसूस कर रहा था, लेकिन जहन पर किसी किस्म का खौफ नहीं था। नासिर, रॉकेट फायर करो। वो सामने दाईं तरफ वाली बैरकों पर कमांडर मुहिबुल्लाह की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने बाईं तरफ देखा। नासिर मुझसे 5 गज के फासले पर था। उसने लॉन्चर में रॉकेट लोड किया, वजूका कंधे पर रखा और इस तरह पोजीशन लेकर बैठ गया कि एक घुटना जमीन पर टिका हुआ था और दूसरा घुटना खड़ा था। वो निशाना लेने के लिए लॉन्चर को आहिस्ता आहिस्ता हरकत दे रहा था कि सामने से जबरदस्त फायर आया और लातादाद गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। नासिर भी बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गया था। फायर, कमांडर मुहिबुल्लाह चीखा। नासिर, रॉकेट फायर करो और जुबैर, तुम ट्रकों को निशाना बनाओ। भारतीय कैंप में अब भगदड़ सी मच गई थी। फौजियों ने बदहवास होकर अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया था। वो उस तरफ भी फायरिंग कर रहे थे जहां उनके मुकाबले पर कोई नहीं था। नासिर एक बार फिर पोजीशन लेकर बैठ गया। इस मर्तबा उसने रॉकेट फायर करने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। उसकी ये कोशिश रायगा नहीं गई थी। रॉकेट एक बैरक पर लगा। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ
और शोले आसमान से बातें करने लगे। जुबैर ने भी राकेट फायर कर दिया था। उसका राकेट हरकत करते हुए एक ट्रक पर लगा। ट्रक के परखचे उड़ गए। उसके जले हुए टुकड़ों ने चंद और ट्रकों को भी लपेट में ले लिया था। हमारी दूसरी पार्टियां भी कैंप पर राकेट बरसा रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे इस भारतीय फौजी कैंप पर कयामत टूट पड़ी हो। राकेट अपना काम दिखा रहे थे। कैंप में असले के जखीरे तबाह हो रहे थे। लग रहा था कि जैसे कैंप में कई आतिशफिशा बैक वक्त फट रहे हों। मुसलसल धमाकों से पहाड़ियां लरज रही थी। हमारे सामने मोर्चों से अब भी हैवी मशीन गनों से बड़ी जबरदस्त फायरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। मकबूल भी वाच टावर पर नस्ब मशीन गन पर कब्जा करने के बाद सामने मोर्चों पर फायर कर रहा था। दुश्मन अपने सामने मिट्टी के बोरियों की वजह से महफूज थे। हमारी चलाई हुई गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। और फिर एक खौफनाक चीख सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उस तरफ देखा और फिर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वाच टावर पर मकबूल को कई गोलियां लगी थी और वो मशीन गन के साथ ढेर हो गया था। सामने वाले मोर्चों से अब फायरिंग में शिद्दत आ गई थी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने बेल्ट में अड़सा हुआ हैंड ग्रेनेड निकालकर उसकी पिन खींची और बम को पूरी कुव्वत से मोर्चे की तरफ उछाल दिया। बम मोर्चे से चंद गज आगे गिरा। गर्दो गुबार का एक बादल उठा। मैंने दो जवानों को मोर्चे की पिछली तरफ से निकलकर एक तरफ भागते हुए देखा। मैंने अपनी गन का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया। वो दोनों ढेर हो गए। मेरा दिल खुशियों से बिलियों उछल पड़ा। इस मार्के में दुश्मनों के पहले दो आदमी मेरा शिकार बने थे। कैंप में जगह जगह धमाके हो रहे थे। असला और गोला बारूद के कई जखीरों में आग लग गई थी। आतिशफिशा फट रहे थे। फौजी इधर उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। हमारे अकब में एक जोरदार धमाका हुआ तो मैं उछल पड़ा। वो मार्टर गन का गोला था जो हम से तकरीबन 30-40 गज पीछे गिरकर फटा था, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। अपनी मशीन गनों के नाकाम होने के बाद भारतीयों ने मार्टर गोलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हमारी तरफ से भी मुसलसल फायरिंग हो रही थी। हमारी दूसरी पार्टियां भी अपने मुहाज पर जमी हुई थी। मार्टर गनों के गोले हमारे आस पास फट रहे थे। मार्टर गनों के साथ भारतीयों ने अब रॉकेट बरसाना भी शुरू कर दिए थे, मगर ये रॉकेट हमें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर हमारे सरों के ऊपर से गुजरते रहे। नासिर के पास 4 रॉकेट थे और वो चारों रॉकेट फायर कर चुका था। एक आखिरी रॉकेट उसने सामने वाले मोर्चे पर दागा था, जहां बाहरी मशीन गन से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। वो मोर्चा तहस नहस हो गया। मशीन गन भी खामोश हो गई। नासिर ने रॉकेट लॉन्चर नीचे रख दिया और सब मशीन गन उठाकर दौड़ता हुआ आगे की तरफ दौड़ा, लेकिन वो चंद गज से आगे नहीं जा सका। बाईं तरफ के मोर्चे से आने वाली गोलियों की बौछार ने उसे छन्नी कर दिया। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। रात बीत रही थी। अंधेरा रुखसत हो रहा था और दिन का बहुत हल्का सा उजाला फैलने लगा था। पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक 1 घंटे में कार्रवाई मुकम्मल करके ठीक 5 बजे तीनों पार्टियों को किसी सिग्नल का इंतजार किए बगैर वहाँ से निकल जाना था। कैंप में अफरा तफरी अब साफ नजर आ रही थी। धमाके अब भी हो रहे थे। धुएं और शोलों के बादल आसमानों की तरफ उठते हुए नजर आ रहे थे। कमांडर मुहिबुल्लाह ने मुजाहिदीन को वापसी का हुक्म दे दिया। मैं अपनी गन उठाना ही चाहता था कि किसी तरफ से आने वाली एक गोली मेरी गन की नाल के अगले हिस्से पर लगी। मेरे हाथ को जोरदार झटका लगा। मेरी गन हाथ से छूट गई और मैं जमीन पर लेटकर तेजी से पीछे की तरफ रेंगने लगा। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। दिमाग में धमाके हो रहे थे और दिल जैसे कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। मौत मेरे करीब आकर गुजर गई थी। अगर गन की नाल रुकावट ना बनती तो वो गोली मेरे सीने में पेवस्त होती। गोली लगने से गन की नाल टूट गई थी और इस तरह गन बेकार हो गई थी। मैंने दोबारा गन को उठाने की कोशिश नहीं की और पीछे की तरफ रेंगता चला गया। इसके साथ ही मैंने पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। तमाम मुजाहिदीन पसपाई अख्तियार करते हुए गड्ढे में उतर रहे थे। हमारे आसपास मार्टर गनों के गोले अब भी फट रहे थे। मैंने इस वक्त खड्ड में छलांग लगा दी थी कि एक जोरदार धमाका हुआ और इसके साथ ही कमांडर मुहिबुल्लाह की चीख सुनाई दी और वो लड़खड़ाता हुआ गिर गया। मार्टर के गोले का एक टुकड़ा उसकी टांग में लगा था और खून बह निकला था। मैंने उसे पकड़कर नीचे खींच लिया। बम का टुकड़ा उसकी बाईं टांग में घुटने से कुछ ऊपर रान में लगा था। मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग निकल जाओ, कमांडर मुहिबुल्लाह ने धांत बींचकर तकलीफ जब्त करते हुए कहा। हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं कमांडर, मैंने कहा। उसी वक्त अकबर दौड़ता हुआ हमारे करीब पहुंच गया। मैंने अकबर और मुहिबुल्लाह से उनकी राइफलें ले ली। अकबर ने झुककर मुहिबुल्लाह को अपने कंधे पर लादा और खाई में एक तरफ दौड़ने लगा। हमारे अतराफ में अब भी मार्टर गनों के गोले फट रहे थे और रॉकेट सरों पर से गुजर रहे थे, लेकिन हम खाई में होने की वजह से महफूज थे। लेकिन एक रॉकेट हमारे सामने एक ऊंची चट्टान पर
लग कर फटा तो हम एक लम्हे को रुक गए। चट्टान के छोटे छोटे पत्थर टूटकर हमारे ऊपर गिर रहे थे। दिन की रोशनी फैल रही थी। हम उस खाई के नशे में उतर रहे थे और फिर चट्टानों में दूसरी तरफ मुड़ गए। कमांडर मुहिबुल्लाह को अब दूसरे मुजाहिदीन ने कंधे पर लाद लिया था। भारतीय फौजी कैंप में अब भी मुसलसल धमाके हो रहे थे, जिससे आसपास के पहाड़ लरज रहे थे। हम पहाड़ियों में ऊंचे नीचे दुश्वार गुजार रास्तों पर दौड़ते रहे। धमाकों की आवाजें कुछ मध्यम और कम हो गई थी। हम वहाँ से बहुत दूर निकल आए थे। मैं सोच रहा था कि भारतीयों का ये कैंप अगर पूरी तरह तबाह नहीं हुआ था तो इन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। धूप निकल आई थी। सूरज जैसे जैसे ऊपर आ रहा था, चट्टानें तपने लगी थी। हम एक जगह चट्टानों के साए में रुक गए। कमांडर मुहिबुल्लाह को जमीन पर बिठा दिया गया। जख्म से खून बह रहा था और मुहिबुल्लाह ने तकलीफ जब्त करने के लिए दांत भींच रखे थे। अकबर ने अपनी कमर पर बंधा हुआ पटका खोल दिया और उसकी एक लंबी सी पट्टी फाड़ कर जख्म से जरा ऊपर इस तरह बांध दी। पहाड़ों में फायरिंग की आवाज मुसलसल गूंज रही थी। भारतीय फौजी यकीनन हमारे ताक़ुब में होंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो इन पहाड़ियों में ज्यादा अंदर आने की कोशिश नहीं करेंगे। चंद मिनट रेस्ट करने के बाद हम फिर चल पड़े। मुहिबुल्लाह को फिर अकबर ने कंधे पर लाद लिया था। हमारी मंजिल फिरोजपुरा नामी कस्बे के करीब पहाड़ियों में वो गार था जिसके बारे में पहले ही से तय कर लिया गया था कि कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हमारी पार्टी के मुजाहिदीन वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम लोग सड़क से तकरीबन 1 मील दूर हटकर दुश्वार गुजार पहाड़ों में सफर कर रहे थे। हमें कोई खतरा भी नहीं था और फासला भी कम से कम 6 मील का रह गया होगा। कमांडर मुहिबुल्लाह को हम बारी बारी कंधों पर उठाकर सफर कर रहे थे। इस तरह हमारी रफ्तार अगरचे कम हो गई थी, लेकिन हम बेथकान अपना सफर जारी रख रहे थे। एक मौके पर हम पहाड़ी से इस जगह पहुंच गए जहां से सड़क नजर आ रही थी। श्रीनगर की तरफ से चंद फौजी ट्रक बड़ी तेज रफ्तारी से गुलमर्ग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ट्रकों पर हैवी मशीन गनें नस्ब थी। हम उस पहाड़ी पर करीबन 2000 फुट की बुलंदी पर थे और इस वक्त तक चट्टानों की आड़ में खड़े रहे जब वो फौजी ट्रक पहाड़ों में एक मोड़ घूम कर हमारी निगाहों से ओझल नहीं हो गए। हम चट्टानों में सफर करते हुए एक बार फिर शाहराह से दूर हटने लगे और तकरीबन 9 बजे के करीब चट्टानों में पोशीदा एक गार में पहुंच गए। इस गार में डॉक्टर मरियम को देखकर मैं उछल पड़ा। मेरे लिए ये इंकशाफ दिलचस्पी से खाली नहीं था कि डॉक्टर मरियम गुज़िश्ता शाम यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ उसकी आमद इत्तफाकिया नहीं थी, तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक थी, क्योंकि ये करीब तरीन जगह थी जहाँ जख्मी मुजाहिदीन को तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकती थी। हमसे पहले अब्दुल गनी लोन की पार्टी यहाँ पहुँच चुकी थी। उस पार्टी के 2 मुजाहिदीन जख्मी हो गए थे, जिनमें से एक के बाजू में गोली लगी थी और दूसरे की पिंडली में। डॉक्टर मरियम हमारे आने से पहले उनकी ड्रेसिंग कर चुकी थी और अब वो फौरी तौर पर कमांडर मुहिबुल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो गई। मुहिबुल्लाह को लगने वाले बम का ताज़ा टुकड़ा गोश्त के अंदर भी रह गया था, जिसे निकालना बहुत जरूरी था। इस किस्म के ऑपरेशन करने के लिए मरीज को बेहोश करने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ एनेस्थीसिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम डॉक्टर मरियम के पास एक ऐसा स्प्रे था जिससे गोश्त वक्ती तौर पर सुन्न हो जाता था। अब्दुल गनी लोन और मैं कमांडर मुहिबुल्लाह के करीब मौजूद थे। डॉक्टर मरियम ने पहले जख्म का मुआयना किया, फिर उसके अतराफ में स्प्रे कर दिया। चंद सेकंड बाद उसने जख्म के करीब टांग पर चुटकी भर कर देखा। मुहिबुल्लाह ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। डॉक्टर मरियम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। निश्तर और एक दूसरे आलात जराहत की मदद से वो जख्म को अंदर से फैलाती चली गई। मैं इस मंजर को ज्यादा देर तक नहीं देख सका और नजरें दूसरी तरफ फेर ली। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। डॉक्टर मरियम जख्म को अंदर तक खोलती चली गई। स्प्रे का असर जायल होने लगा था और मुहिबुल्लाह के चेहरे पर भी कर्ब के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे। हौसला रखो कमांडर, मरियम ने कहा। बस 1 मिनट। मैं जानती हूँ कि आपको इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन वो खामोश हो गई। उसकी तमाम तर तवज्जो जख्म की तरफ थी। वो हाथ में पकड़ी हुई चिमटी को जख्म के अंदर हरकत दे रही थी और फिर उसने चिमटी को बाहर खींच लिया। लोहे का वो टुकड़ा करीबन आधा इंच के करीब था जिसे मरियम ने एक तरफ डाल दिया। कमांडर मुहिबुल्लाह इस वक्त बुरी तरह टांग पटक रहा था। मैंने और अब्दुल गनी लोन ने उसे मजबूती से जकड़ लिया और डॉक्टर मरियम बड़े इन्हमाक से अपने काम में मसरूफ रही। चंद मिनट और लगे और फिर ड्रेसिंग कर दी गई। कमांडर मुहिबुल्लाह के चेहरे पर कब्र और अजियत के आसार नुमाया थे। उसने तकलीफ जब्त करने के लिए जबड़े भींच रखे थे, मगर मुंह से उफ तक नहीं निकली थी और ये वाकई हिम्मत की बात थी। होश में रहते हुए ऑपरेशन बर्दाश्त कर लेना बड़े हौसले का काम था। मरियम ने उसे एक गोली भी खिला दी। ड्रेसिंग के कुछ देर बाद मुहिबुल्लाह पुरसुकून होता चला गया और फिर शायद ये उसे खिलाई जाने वाली गोली का असर था कि वो नींद की आगोश में चला गया। हम दोनों गार के दूसरे हिस्से में आ गए। मरियम हाथ धोकर कहवा बना लाई। उस वक्त गार में हम 12 आदमी थे। मुझे मालूम था कि हमारी पार्टी के 2 मुजाहिदीन शहीद हो गए थे। हसन लापता हो गया था। उसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो शहीद हो गया था या हमसे बिछड़ कर पहाड़ों में किसी तरह रूपोश हो गया था। अब्दुल गनी लोन की पार्टी का एक मुजाहिद शहीद हो गया था और 2 जख्मी हो गए थे, जिन्हें यहाँ लाकर ट्रीटमेंट दे दिया गया था। कमांडर रशीद या उसकी पार्टी
के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली थी। वो लोग किसी और तरफ निकल गए थे। भारतीयों के फौजी कैंप के बारे में भी कोई इत्तला नहीं थी कि इन्हें कितना नुकसान हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल था कि हमने इन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। ये गार भी बारामूला वाले गार की तरह कुशादा और अंदर से कई हिस्सों पर मुश्तमिल था। चाय पीने के बाद हम काफी देर तक बातें करते रहे और फिर मैं डॉक्टर मरियम के साथ गार के एक और हिस्से में आ गया।